नमो भगवते वासुदेवाय। आज तुम मन को मु कर्म सिद्धांत उपर किछ कहिବାକୁ जाउछि। कर्म ओ कर्मर सिद्धांत ए दुईटी कथा को बुझिबा बहुत आवश्यक, किंतु बहुत चेष्टा करी मध्य अनेक लोक बुझी पारती नहीं। साधारण लोक कथा कौन कहवा, एपरिक जो मैंने दर्शन शास्त्र पढ़ुंट बा जोग विषय अन्य मान को मार्गदर्शन दौरान भितर अधिकांश कर्म सिद्धांत विषय प्रकृत रे किसी भी जानती नहीं। कर्म कौन ताकू बुझीबा पई जन को कर्म प्रवाहर ऊर्ध्वक जावाक पड़िबो। कर्म कौन, तार स्वरूप कौन, कर्म केते प्रकार, कर्म फल कौन, इते सब प्रश्न मनरे आसीबा भी एक बहुत बड़ कथा। अनेकंकर जीवन सरी जाए किंतु एभली प्रश्न मन को आसे नहीं। योग साधना करी अनेक योगी साधक महात्मा ही जाइछन्ति, किंतु कर्मर तत्व तांकु जଣା थिला भलिया मत लगे नहीं। आम समस्त अच्छे कर्म क्षेत्र में, मर्त्य लोक हूँ कर्म क्षेत्र। एठिकी जी आसीबो से एक कर्म करिया बाध्य। से साधारण मनुष्य हो बा भगवान स्वयं हूँ, कर्म जगत को आसीच मान कर्म करिया बाध्य। किंतु भगवान आम भीतर तफात होती कौन ना, भगवान बहुत कर्म करती। भगवान जो सब कर्म करती से आम मनीष मैंने चिंता भी कर, किंतु कौन सी कर्म से बांधी होती नहीं। किंतु आम अति साधारण कर्म टे कले आम से कर्म से बांधी ही जाए। तार कारण कौन? तार कारण हूँ भगवान होती स्वयं ज्ञान। तो से जो स्वयं ज्ञान से कर्मटा कौन, किपरि करा जाए, कहीं करा जाए, केतेबेले करा जिवो, को पेरियड करा जिवो, कर्मर उच्च कोठी, ये सब कथा तांकु जଣା थाए। किंतु आमको से सब जानिबा संभव हुए नहीं, कारण आम ज्ञान नुहे। आम अति बेसी साधना करी करी आम ज्ञानी ही जीवा, अर्थात किछिटा ज्ञान आम लाभ करिबा। ज्ञान तो प्रकृति में लाभ करा जाए नहीं, कारण ज्ञान गोटे वस्तु नहीं ताकू जने लाभ कर। भगवान कहते से ज्ञान विषय कौन ना, काले न आत्मनि विंदति। समय उपयुक्त समय रे जीवात्मा निजे निजे से ज्ञान प्राप्त हुए। अर्जुन कथा समझ शुणी थो, कर्म कौन ये प्रश्नटी अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण पचारे गीतार अष्टम अध्याय किं कर्म। आउ भगवान तृतीय अध्याय कर्मयोग कहला भगवान कौन कहले, हे अर्जुन कर्म कौन, अकर्म कौन, विकर्म कौन, यहाँ जानापी ज्ञानी मैंने
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତି। କିଂ କର୍ମ କିଂ ଅକର୍ମ ଇତି କବୟ ପିତୃମୋହିତା। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ କର୍ମ କ'ଣ ତତେ କହିଦେଉଛି। ତୁ କ'ଣ କହିଲେ କର୍ମ କ'ଣ ଏ କଥା କହିବେ କି ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ କର୍ମ କ'ଣ ଜାଣେ, ଅକର୍ମ କ'ଣ ଜାଣେ, ବିକର୍ମ କ'ଣ ଜାଣେ, ତେବେ ଯାଇକି ତୁ ଜାଣିବୁ କର୍ମ କ'ଣ। ଆରେ ଇଏ ଧରଣର ଉତ୍ତର ଇଏ। ଯଦି ଜଣେ ପଚାରିବ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ, ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ ମିଥ୍ୟା କ'ଣ ତୁ ଆଗେ ଜାଣି ସାରେ, ତାପରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବୁ। ଇଏ କୋଉ ଧରଣର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଯଦି ଜଣେ କହିବ ଆମ୍ବଟା କେମିତି ଲାଗେ, ତାକୁ ଯଦି ଜଣେ କହିବ ତୁ ଲେମ୍ବୁଟା ଖାଇଲା, ତୁ ଆଗେ ଖାଇକିରି ଜାଣେ, ତାପରେ ଜାଣିବୁ ଆମ୍ବଟା କ'ଣ। ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ହସୁ, ଗୋଟାରେ ବେତାଲିଆ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି। ଏ ବେତାଲିଆ ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଠିକ ଦାଣ୍ଡିଆ କଥା। ଏ ବେତାଲିଆ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ୍ବର ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ଜାଣିବ କହିଲେ ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଖା, ତାପରେ ମତେ ପଚାରିବୁ। ସେ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇକି ଆସିବ, କହିବାର ଲେମ୍ବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ନା ଲେମ୍ବୁଟା ଖଟା ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ତୁ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ୍ବଟା ଖଟା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମ୍ବଟା ଖଟା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ବଟା କ'ଣ? ତାହେଲେ ତୁ କଲରା ଖାଇଲେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମ୍ବଟା କ'ଣ। ସେ ଲୋକ ପୁଣି କଲରା ଖାଇଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଆସିଲା, ତାହେଲେ କଲରା ଖାଇଛୁ ନା? ହଁ ଖାଇଛି। ତ କ'ଣ କଲରା କେମିତି ଲାଗିଲା, ନା ପିତା ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ଆମ୍ବଟା କ'ଣ? ଇଏ ଲୋକ ଉତ୍ତରଟି ଦେଲେ, କହିଲେ ଆମ୍ବଟା କଲରା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ୍ବଟା କଲରା ନୁହେଁ, ଆମ୍ବଟା ଲେମ୍ବୁ ନୁହେଁ, ଆରେ ଆମ୍ବଟା କ'ଣ କହିଦେଉନା। ଏମିତି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ 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 ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଯିବ, କ'ଣ ନା କଟୁ, ଅମ୍ଳ, ଲବଣ, ଅର୍ଥାତ ପିତା, କଷା ଆଉ ଖଟା, ପିତା, କଟା, କଷା, ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିସାରିବ, ତାପରେ ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟିଏ, ସେ ବେଳେ ବେଳେ କହିବ ଏଇଟା ପିତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଖଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା କଷା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଯାହା ସେଟା ହେଲା ମିଠା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଣିବାର ଏଇ ଯୋଉ ଉପାୟ, ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପନିଷଦ ପଦ୍ଧତି। ଉପନିଷଦରେ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଉପନିଷଦଟା କିଛି ବୁଝିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଜାଣିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏଟା ଅନୁଭବ କରିବାର କଥା। ତେଣୁ ଉପନିଷଦ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅନୁଭବର କଥା। ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଜଣାଯାଏ। କୋଉ ଅନୁଭବ? ପୁଣି ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବ ନୁହେଁ, ସେଇ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଯାହାକୁ ଜଣା, ଯାହା ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା କରାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପନିଷଦଗତ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା କହିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଉପନିଷଦ, ଅର୍ଥାତ ଅନୁଭବର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ବିଷୟରେ ତମକୁ କହୁଛୁ, ତମେ ତାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବ। କର୍ମ ହଉଛି ତିନି ପ୍ରକାରର। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୁଁ ବୁଝଉଛି, କର୍ମ ହଉଛି ତିନି ପ୍ରକାରର: ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ, ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଓ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ। ଯୋଉ କର୍ମ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରୁଛେ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ। ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଏ ସବୁ ହଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ। ଯାହା ଭୋଗ ହଉଛି ତାହା ହଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଯାହା ଭୋଗ ହେଇଗଲା ତାହା ଥିଲା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ। ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ମାନେ ଯାହା ଭୋଗ ହେଇନାହିଁ, ଭୋଗ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ଭୋଗ ହବ, ସେଇଟା ହେଲା ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ।
ये संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म उत्स कौटी ये कौट आरंभ हुए ये क्रियमाण कर्म आरंभ हुए आम जो कर्म करू कर्म कौन आम केमती करू आम शरीर द्वारा कर्म करू मन द्वारा कर्म करू वचन द्वारा कर्म करू इंद्रिय मान द्वारा भी कर्म हो जाए कर्म करू गीतार कह ना काये न मनसा वाचा केवल इंद्रिय ही अपि तेणु कर्म हम इंद्रिय मान द्वारा कर्म हम मन द्वारा कर्म हम शरीर द्वारा कर्म हम वचन द्वारा आम कथा द्वारा वाणी द्वारा ये जेते प्रकार ये जो कर्म हबार ये जो अच्छी उपादान ये उपादान मान द्वारा जिते सब कर्म हम से सब कर्म हूँ प्रथम क्रियमाण ये क्रियमाण कर्मर किछि फल आमको भोग हुए आउ किछि भोग न होइकरी तत्काल संचित ही रही जाए जहाँ संचित ही रहीगला से कर्म कहुचे संचित कर्म संचय ही किसी रहा जमी तुम जी रोजगार करुच मास जाक जहाँ रोजगार कर ताकू सांगे सांगे खर्च हो जाऊनी किसी संचय कर रखुच भविष्य खाद्य जहाँ रांधुच ताकू सांगे सांगे सब खाई दौन से किसी रखुच सका रांधिल कि राति पे खाई रखुच ता परदिन खाया पी रखुच संचय हो रांधिल तो वर्तमान किंतु संचय कर रखुच राति पे काली पे परदिन पे संचित सेमती आम जो प्रकार कर्म करू से कर्म कला बेले से क्रियमाण कर्म किंतु सेतु किछि संचय ही रही जाए भविष्य सेटा होची संचित कर्म ये जो सब कर्म ये सब कर्मर फल जो सब कर्मर फल मिल सारी सेटा को आम कहू प्रारब्ध और जहाँ एवं मिलूँ से भी प्रारब्ध बोली कहवा प्रारब्ध भोग हो गला ओ मोर बहुत रोग पड़ी एवं कौन अच्छे भल हो गला प्रारब्ध भोग हो गला केमती तू अच्छु बहुत कष्ट अच्छी बहुत देह खराब जर छाड़ूनी खास छाड़ूनी सर्दी छाड़ूनी औषध खाइले भी जाऊनी तमें प्रारब्ध भोग हो प्रारब्ध अर्थ कौन प्रारब्ध अर्थ प्रारंभ प्रारंभ रु प्रारब्ध माने प्रारंभ आरंभ होइछि जहाँ भोग करवा आरंभ होइछि सेला प्रारब्ध और जो कर्मर फल मिलवा को बाकी अच्छी से हला संचित संचित और प्रारब्ध कर्म भितर प्रफत होइछि कौन तफात संचित कर्म जिते फल मिलवा आरंभ करे सेते संचित कर्मटी है प्रारब्ध प्रारब्ध हेबा जोगु ही से फल दबा आरंभ कला संचित और प्रारब्ध ये उभय कर्म संपर्क रही अतीत कर्म सह बर्तमान आम जो सब कर्म करूँ जोटा कि क्रियमाण ये क्रियमाण कर्म अधिकांश संचित श्रेणी को चली ये जन्मर संचित कर्म जहाँ ये जन्म संचय अच्छी पूर्व जन्म क्रियमाण कर्म थिला किंतु ये जन्म जो क्रियमाण कर्म जहाँ बे करुचे ता भविष्य संचित कर्म हो से तुम भल कर्म जदि कर तुम फल भविष्य भल हम खराब कर्म कले भविष्य फल खराब हम संचित और क्रियमाण ये दुटा जाक कर्म जिते बड़े
ये संचित कर्म भोग हवा आरंभ करवा सेटा हला प्रारब्ध। तेणु आम कहू तो तार प्रारब्ध एमती लेखा था प्रारंभ तार प्रारब्ध भोग हो गला। गोटे उदाहरण दबा, गोटे लोक रास्ता जाऊला, गाई मैंने गोठरू फेरुले, से लोकटी रास्ता जाऊची तो सी जाऊ जाऊ से गाई गोठ भितर पशिगला। गोठ गाई मैंने गोठर फेरुंट, संध्या है से गाय सब निज निज घर को जी गुहाड़ को जी से समय गोटे गाई गोटे से लोकटी जो लोकटी बाटर चलुला गाई गोठ भितर पशि गोटे गाई ताको सीधे मारदेला। से लोकटी पड़गला, ता देह हाथ खुलिया खबरा होगला। बर्तमान कथा हूँ जदि सेतिकी बेले से गाई मारिबा जोगु से पड़िला एवं तार गोड़ हाथ खंडिया हला, ताले से जो तार जो कर्मटा सेटा प्रारब्ध थिला ना संचित थिला ना क्रियामान कर्म। गाई मारिबा पूर्वरु हम ताको कहि परिबेन जेटा प्रारब्ध हला बोली, किंतु जतबले गाई मारिबा द्वारा से जो पड़ीगला खंडिया खबरा होगला, तार गोड़ के हाथ भांगी गला, सेटा को आमे कहि परिबा जेटा प्रारब्ध थिला, तार गोड़ भांगीबा के हाथ भांगीबा। किंतु गाई मारिबा ताकू एटा प्रारब्ध रे थिला कि नथिला सेटा जोर दे कहि होबनी। किंतु गोड़टा भांगीबा, हाथटा भांगीबा, ये मुंडटा फाटिबा, एटा प्रारब्ध थिले ही घटिबा। भल कर बुझी रख। बर्तमान तुम जन जदि कहब जन किए कहब जे मु गाड़ी चलै करी जाउथली आ मो गाड़ी एक्सीडेंट हला, मो गोड़ भांगी गला, एटा मु प्रारब्ध थिला। एठे अछि विचार करिवार कथा। एटा कोन ना मनीषटी जो रास्ता रे जीव गाई माने से रास्ता रे जीवे। तेणु मनीष गाई गोठ भीतर पशि जावा बा गाई गोठटी मनीष थिबा दांडू को चली आसीबा, ये दीटा जाक किछि प्रारब्ध नुहे। कारण रास्ता गोटिए एवं मनीषटी गाँ दंडे चलिक गला बेले से चलबार कौन नियम भंग करना से कौन बाड़ी उठे 5 जन उठे कौन गाई की से बाड़ेनी, किंतु गाईटा आसिक सिंहर ताको मारला, से पड़ला, हाथला भांगला कि गोड़टा भांगला। ये जो कर्मटा हला जहा जो थे तार निजर कौन प्रकार कर्म करिवा जनित त्रुटि नहीं, किंतु से दंड पाइला। एटा को आमे कहबा जे गोड़ भांगीबाटा बा हाथ भांगीबाटा प्रारब्ध रे थिला। किंतु जड़े गाड़ी चले करी जाउची रास्ता रे, से रास्तार नियम न मानिक ट्राफिक नियम न मानिक गाड़ी चलेबार नियम न मानिक गाड़ी चलेबा एवं तापर एक्सीडेंट हबो एवं तार मुंड फाटिबो कि तार गोड़ भांगिबो, सेटा को जदि हम कहबा प्रारब्ध थिला नाइ, सेटा ठीक नहे। इठी कोन रहउची त हमने बुझिबार अछि जे गोटे व्यक्ति स्वातंत्र्य प्रत्येक व्यक्तिर गोटे स्वातंत्र्य अछि, अर्थात गोटे इच्छा शक्ति अछि, गोटे विचार शक्ति अछि। ताकू जदि हम प्रयोग न करिबा एवं आमे प्रयोग न करिबा जनित जो त्रुटि हबो, सेथिपई आमे जो कर्म फल पाइबा सेटा प्रारब्ध बोली कहाबो नै। ताले सेटा कोन से कर्मटा गाड़ी चलै कि जिबा एवं एक्सीडेंट हवा, एटा कोन एटा क्रियमाण कर्म। जे क्रियमाण कर्म द्वारा जो एक्सीडेंट हला, दुर्घटना घटिला एवं गोड़टी भांगिला कि मुंडटी फाटिला,
से क्रियमान कर्मर फलटा से तत्काल मिलगला। किंतु जदि से एक्सीडेंट द्वारा ब्रेन हामरेज हला एवं से व्यक्ति आउ 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष जिते बंचेला से ब्रेन हामरेज जो से कथबार्ता कर पारलानी कि चल प्रचल हो पारलानी ताहले आमे कहिबा जे तार से चल प्रचल न हवा ता थिला प्रारंभ सेटा ये एक्सीडेंट जो हो पारे तारा से ब्रेन स्ट्रोक जो भी हो पारे प्रारब्ध पर थिला सेटा से संचित ही थिला भोग करबा समय आसिला तेणु सी भोग कला एवं सी वर्तमान पक्षाघात पड़ा यही भाव कर्म एवं कर्म फल को विचार कले जे कर्म सिद्धांत कौन तुम जानी हब कर्म सिद्धांत प्रकृत समस्या हूँ कौटी ना क्रियमान कर्म अच्छी आम जो कर्म वर्तमान करुचु से कर्मटा नुआ कर्म बा कौन पूर्व कर्म फल यहीटा को मन रखा पड़ो आम जो कर्मटी वर्तमान करुचु सेटा वर्तमान कर्म ना पूर्व कौन कर्मर फल जो आम से कर्म कर जोटा को मुझे कर्म प्रवाह तेणु गोटे कर्मर कारण कौन उच्च कोठी वर्तमान करा जाउथबा कर्म र कोनसी को कारण थिला ना एटा गोटे नुआ कारण हला जदि यह नुआ कारण ताहले ए नुआ कारण रो फल नुआ कारण द्वारा होता कार्य एबे हबो एबे मिलिबो फल नहीं तो भविष्य पे संचित हो रहा एटा को वर्तमान बुझे पड़ो जे ए जो कर्म पाई भाग्य दायी ना पुरुषार्थ दायी अर्थात ये जो कर्मटा एटा संचित होकर एवं ताहा आमर भाग्य हम ना पुरुषार्थ द्वारा आम ये कर्मटा को संपूर्ण भाव में भोग करवा एवं भविष्य किसी रखा ना ये बुझा हूँ कर्म सिद्धांत कथा यही कथा को विचार कला बेले आम मन में दुई प्रकार भावना आसो गोटे हूँ जे क्रियमान कर्मटा स्वतंत्र कर्म नुहे अनादि अनंत काल चली आसीथिबा कर्मर ये गोटे प्रवाह स्वतंत्र कर्म पर एटा देखा जीव किंतु प्रकृत रे एटा पूर्व कर्मर फल एटा गोटे विचार ये जो कर्म पूर्व कर्म फल ए कर्मटी एमती हम या अलग हो पार ना ये जो विचार से कह जाए कार्य कारण और नियम कारण थिला तेणु कार्य है ये कार्य कारण नियम टाक काटी हम नहीं तेणु ये जो कहती जे यार कारणटा थिला तेणु ये कार्यटा हला केबे काटी हम नहीं ये जो कह जाए भाग्यवाद भाग्यं फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषं कहती जे जिते विद्या था जिते पौरुष था जिते तुम ये था भाग्य रे तुम एटा थिला तेणु तुम एटा भोग कल एटा कहती भाग्यवादी
आ गोटे मत हूँ कौन ना क्रियमाण कर्मटा सब स्वतंत्र कर्म आम जहाँ चाहिए जेपरी चाहिए आम सेपरी कर्म कर पूर्व कर कर्म साथ आम बांधी होना आमर स्वतंत्र रही आमर स्वतंत्र इच्छा द्वारा आम सब कर्म कर भाग्य फाग्य इधर किसी ना सावधान रे गाड़ी चलते गाड़ी एक्सीडेंट हो ना था असावधानता हेलु गाड़ी एक्सीडेंट है मुंड फाटिला इधर भाग्य कौट आसला ये जो विचारटा ये विचार को कहती यहाँ हूँ पुरुषकार विचार अर्थात पुरुषार्थ तेन गोटे भाग्य आ गोटे पुरुषार्थ कर्म सिद्धांतर ये दीटा दिग अच्छी दीटा विचार अच्छी पुरुषार्थ रे विश्वास करुवा लोक माने कारण जो कार्य है जो कार्य कारण ये नियम को से मानती बर्तमान हम देखा वेदांतर सिद्धांत कौन हम जो कहे सनातन संस्कृति आर्य संस्कृति ये जो कर्म सिद्धांत उपरे आर्य सिद्धांतर आर्य संस्कृतिर मत कौन वेदांतर मत कौन सनातन संस्कृतिर मत कौन वेदर मत कौन जे कार्य कारण सिद्धांत कारण प्रति कार्य पछरे कारण अच्छी इटा वेदांत कहूची ना प्रत्येक कर्म स्वतंत्र इटा केवल पुरुषार्थ जो हुए इधर कौन सी भाग्य फाग्य किसी नहीं इटा ये दिटा कोटा हूँ आमर आर्य संस्कृति बा आर्य सिद्धांत वर्तमान ये विचार कर मुझे या पर गभीर विचार कर मुझे उपलब्धि पहुंचली जे आर्य सिद्धांत बा सनातन सिद्धांत आर्य संस्कृति ये दुईटा भिन्न अर्थात ये भाग्य आर्य सिद्धांत भाग्यवादी नुहे और पुरुषार्थवादी भी नुहे इटा आउ एक प्रकार सिद्धांत इटा कौन आर्य संस्कृति सिद्धांत होची जे कार्य कारण नियम कार्य कारण नियम अर्थात भाग्य मु कर्म सिद्धांत अर्थात स्वतंत्र पुरुषार्थ ये दीटा के भीतर किछि किछि साम्य रही किंतु किछि किछि प्रभेद भी अच्छी कार्य कारण नियम भौतिक जगत को प्रभावित करुछि आम जो पंच महाभूत अच्छी अग्नि वायु जल शीताप तेज मरुत व्योम ये सब प्रत्येक नियम भितर काम कर कर्म नियम आमर आध्यात्मिक जीवन नियम को प्रभावित कर अध्यात्म दृष्टि देखिले वेदांत दृष्टि देखिले जे आम ये सृष्टि रे जो अच्छी पंच महाभूत खिताप तेज मरुत व्योम ये पंच महाभूतर ऊपर आउ एक शक्ति रही जो शक्ति ये पंच महाभूत को क्रियाशील करुच्ची सेटा को गीतार भगवान कहते पराशक्ति पराशक्ति ये भौतिक जगत आम जहाँ देखुचे यहाँ स्वतंत्र नुहे
ये जगत रो जो नियम सब चली कर्म प्रभाव चलती ये सब भी आउ एक शक्ति नियंत्रण अच्छी ये जो नियम किए करिछि ये नियम नियामक किए ये नियम को के कहते भगवान के कहते ईश्वर के कहते परमात्मा के कहते शिव विष्णु दुर्गा ब्रह्मा तेणु ये शक्ति जहाँ भी हो सके ये नियामक शक्ति ये शक्ति भौतिक जगत को नियंत्रण करुछि भौतिक जगत स्वतंत्र नुहे भौतिक जगत कार्य कारण नियम अधीन ये नियम को से तिले मात्र भांगी पारिबो नहीं किंतु आत्मा जे भौतिक पथठार भिन्न से आत्मा ए कार्य कारण नियम रे बंधा नुहे से ए कार्य कारण नियम ऊर्ध्वरे जो शक्ति अच्छी से शक्ति द्वारा परिचालित होती कार्य कारण नियम हला कौन ना प्रति कार्य गोटे कारण अच्छी एटा कार्य कारण अर्थात जो फल बर्तमान भोग कर तार मंजीटा आउ गोटे केतबेले संचित थिला एटा होची भाग्य किंतु अध्यात्म कथा चली जावा सेति बेले आम कह ये शक्तिर पर भी आउ गोटे शक्ति अच्छी अर्थात भाग्य उपरे भी आउ एक शक्ति काम करुची सेटा कौन सेटा परमात्मा सेटा परमात्मा हूँ किए ना आत्मा जीव भितर रही ये नाम कौन जीवात्मा किंतु विश्व भितर रही सी विश्वात्मा प्राणी मान भितर गछपता गछ लता पहाड़ पर्वत नदी झरणा भितर से भूतात्मा कारण सब पंच महाभूत सृष्टि किंतु ये सब भितर थिले मध्य ये सबुर ऊर्ध्वरे होचंती परमात्मा यही कारण जोगु जो माने प्रकृत रे आध्यात्मिक उपलब्धि पाइछंती से माने कहंती जे भाग्य अच्छी किंतु मु भाग्य को अतिक्रम कर कहती पुरुषकार भूमिका निश्चय रही पुरुषकार भी गुरुत्व तार गुरुत्व रही किंतु मु पुरुषकार को समर्पण कर देछि परमात्मा पाखरे तेणु ना तो भाग्यवादी ना तो पुरुषवादी मुझे से परमात्मा अंश एवं परमात्मा भीतर जहाँ अच्छी मो भीतर से अच्छी जब गोटे घर भीतर प्रवाहित होता इलेक्ट्रिक करेंट सब आड़े समान परिमाण अच्छी गोटे 0 वाट लगे दौचे जी लाइट दौर गोटे 100 वाट बल्ब लगे दे आउ गोटे होल्डर से आउ अधिका लाइट दब जो होल्डर 0 वाट बल्ब लगे जी ठीक से होल्डर 0 वाट को काढ़ी 100 वाट बल्ब लगे आहरी अधिका लाइट देला तेणु प्रत्येक जीवात्मा भितर परमात्मा जो शक्ति से प्रभावित होची जेतेबेले व्यक्ति एक कार्य कारण को अतिक्रम कर जाए अर्थात भाग्य को अतिक्रम कर जाए एवं
ए पुरुषार्थ को अतिक्रम कर जाए सेतेबेले से चेतनार आउ एक डोमेन भीतर प्रवेश करे आउ एक स्तर रे प्रवेश करे जोटा होची आमे को आत्मा स्तर अध्यात्म सीठू आरंभ होला। अर्जुन तो एक कथा पचारते ना भगवान को किं तद ब्रह्मा किं कर्म अध्यात्म किं उच्यते किं तद ब्रह्म किं अध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम। ये ब्रह्म कौन ये अध्यात्म कौन है कर्म कौन मत बुझे दिल से केते पचारे अष्टम अध्याय पचारे अष्टम अध्याय कौन अक्षर ब्रह्म योग अष्टम अध्याय पूर्व कौन थिला ज्ञान विज्ञान योग ता पूर्व कौन थिला ध्यान योग ता पूर्व कौन थिला संन्यास योग ता पूर्व कौन थिला ज्ञान योग ता पूर्व कौन थिला कर्म योग ता पूर्व कौन थिला विचार योग ता पूर्व कौन थिला विषाद योग। तेणु विषाद भितर उठी 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 जे आत्मचेतना को अनुभव कर सारे ध्यान रे एवं आत्मचेतना को अनुभव कला पर ही से जानी पारुछंती जे मो बाद भी आउ गोटे किए अछि आत्मा जानी पारुची अरे मु सब सब किछि नुहे मो सह आउ जणे भी किए अछि जे कि मो सह थिले मध्यम मो सह नांती मो सह थिले मध्य मो ऊपर अछंती से जो अनुभवटा सेटा होची भक्ति। तेणु जो टिके भक्ति के अनुभव है से बेले जाए प्रश्न मौलिक प्रश्न अर्जुन पचारि पारा अर्थात जीवात्मा पचारि पारा जे मत कहते तुम्हें कौन से ब्रह्म जोटा को अनुभव करुली मोर समाधि रे षष्ठ अध्याय तुम्हें कौन से ब्रह्म तुम्हें जदि से ब्रह्म तेबे मत कह तुम स्वरूप कौन तुम स्वभाव कौन किं तद ब्रह्म अब तुम्हें जदि से ब्रह्म नुहे मुझे तुमको एते पाखरु देखुची तुमको भी अनुभव करुची किंतु तुमको अनुभव कले मते किते आनंद लगुची मो निज को अनुभव कले इते आनंद पाउ नथिली मो निज आनंद भीतर तुम निर्वाक निष्पन्द हो जाउथिली किंतु तुमको जो अनुभव करुची से अनुभव भीतर मते इते आनंद कब आसुची तामने तुमे मु नुहे जदियो मु तुमे किंतु एबे मु बुझ परचे तुमे मु नुहे तुमे मो ठारू आहुरी अधिक आहुरी विराट आहुरी व्यापक से कि मु ये आनंद अनुभव करुची कि तो तमे मते कहि दियो जे ई जो मु निज को अधिक भाव अनुभव करुची सेटा कौन तार स्वरूप कौन किं तद अध्यात्म आउ तुम मो भितर तुम अनुभव करुची किंतु तुमको आखि द्वारा देखु नहीं किंतु तुम देखुची कान द्वारा तमे कौन कहूच मोर कान थिले भी से कान द्वारा शुणी पारुनी किंतु तुम शुणी पारुची। तेणु हे ब्रह्म तुम्हें कौन मो ठारू आहुरी उत्तम से मो ब्रह्म अवस्था ठारू आहुरी उत्तम मोर आत्मभाव ठारू आहुरी अधिक गरियान महान सुंदर। तेणु तुम्हें मुझे जदि हेली पुरुष तुम्हें ताहले मो ठारू आहुरी बड़ पुरुष भल पुरुष महान पुरुष तेणु तुम्हें ही बोधे पुरुषोत्तम किं तद ब्रह्म किं अध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम। ये जो प्रश्न गुड़िक अर्जुन पचारे से अर्जुन किए से कौन ये जो विषाद अर्जुन से कौन काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य बुड़ी थी अर्जुन। तेणु कर्म सिद्धांत बुझा हेले आमको भाग्यर ऊर्ध्व को जावाक पड़िबो एवं पुरुषकार ऊर्ध्व को जावाक पड़िबो एटा होची वेदांतर मार्ग।
आर्य संस्कृतिर मार्ग। तेणु आर्य संस्कृति कहूची जे आत्मा भौतिक वस्तु भिन्न। तेणु आम जदि आत्मा को स्वीकार करवानी ताहले आम यार जापारे आर्य संस्कृतिर कर्म सिद्धांत को बुझीपारानी। आत्मार स्वतंत्र रही एटा प्रति जीवात्मा अनुभव करिछि। कामना वासना रे छंदी हो गले मध्य प्रत्येक जीवात्मा ज्ञात सार रे हेउ बा अज्ञात सार रे हेउ से कामना वासनार ऊर्ध्व को जीवा पाई सब बेले से चेष्टा करती। जिते सचेतन भाव एटा करा जाए आम से कहू जे योग से योग साधना किंतु जिते सचेतन न थाई मध्य जीवात्मा आत्मा से काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य मुक्त होगापी चेष्टा करुए निरंतर सेटा को आम कहू जे प्रकृतिर नियम रे प्रकृतिर विवर्तन अनुसार आत्मा प्रकृतिर ए बंधन मुक्त हो परमात्मा आड़क आगे चली। तेणु कोटा स्वाभाविक ताहले स्वाभाविक हूँ जे आत्मा निजर स्वरूप आड़क जीव एटा स्वाभाविक। आत्मा परमात्मा सह एकत्व अनुभव करिवो एटा स्वाभाविक। ताले अस्वाभाविक कोटा बंधन हूँ अस्वाभाविक। आत्मार बंधन स्वाभाविक नुहे। आत्मार बंधन आत्मार जंत्रणा आत्मार तथाकथित मृत्यु आत्मार तथाकथित जन्म आत्मार तथाकथित वृद्धि ये सब किछि होउची अस्वाभाविक अननेचुरल। ये सब होउची अनुभव जनित ज्ञानर अभाव जोगु एक एक भ्रांति। तेणु ये बुझ पड़ो। ये देखा गोटे छोट उदाहरण दूसरी गोटे लोक हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज होकर आसला। से बहुत दिन असुस्थ थिला हॉस्पिटल एडमिशन नहीं थिला। से ताको हॉस्पिटल धरिके आसुची ता पुओ धरिके अछि बाप को आमे ताको देखिले। अरे कौन हला रे तोरो तू कुआड़े कुआड़ू आसु रे एमती कौन तो बापा कौन एमती कहते कौन कुआड़े आसु ना मो बापा हॉस्पिटल एडमिशन होते असुस्थ थे आज डिस्चार्ज हेले तो तेणु लेकिन जाऊँगी से तो बसी पारे तेणु शोई शोक जाऊँ। आम पचार बापा असुस्थ थे कहीं असुस्थ है कौन होता आम पुओ को केवे पचारूना अरे तू कहीं सुस्थ अच्छु कौन भी सुस्थ अच्छु एटा किए पचारूनु। आम पचार तू तो बाप कहीं असुस्थ है कौन होता किंतु आम पुओ को पचारूना तू कहीं सुस्थ अच्छु कौन है तू कहीं सुस्थ अच्छु कहीं अस्वाभाविक प्रश्न। तेणु सुस्थ रहिबा होची स्वाभाविक असुस्थ हेबा हला अस्वाभाविक। तेणु आम पचारू कौन होता कहीं होता केबे होता ठीक सेमती जने महात्मा को आम पचारू ना तुम्हें महात्मा हलो कहीं हलो महात्मा आम गोटे गोटे मायाग्रस्त होता लोक को पचारू अरे कहीं तू एत व्यस्त हो विव्रत हो क्रोध हो लोभ हो आज तक पचारू तो कहीं लोभ जन जन महात्मा को केवे पचारू तुम कहीं आनंद मो आनंदटा स्वाभाविक अवस्था निरानंदटा हूँ अस्वाभाविक अवस्था। अस्वाभाविकटा ही आम मन प्रश्न करे
जोड़े जीत लोक को आम जो पचार ए तू कहीं जीचु रे कौन पे तू जीचु आमको चापड़ा मारे तू कौन मत पचार तू चाहू मरी जाए कि तू गोटे मरीजा लोक को देखले आम पचारू तार गादी कुटुंब से कौन भी मरीगला रे कौन होता रे किंतु जदि गोटे बाप को जाई पचार तो पुओटा कहीं बंची रे अरे कौन भी से बंची से बाप तुम चपड़ा लगे कहीं ना तो जो प्रश्न को छाड़ा अस्वाभाविक प्रश्न एभला प्रश्न कहीं करा जाए नहीं एभला प्रश्न करवाटा मूर्खामी ठीक सेमती जे आमे जिते रोग पड़ू आम चेष्टा करूँ रोग मुक्त हाँपाई आम डाक्तर पाक जाऊ आम औषध खाऊ आम समस्त प्रकार नियम पालन करूँ अर्थात कौन आम अनेक चेष्टा करूँ से रोगरू मुक्त हाँपाई अनेक लोक आम देखू अनेक दिन धरी से औषध खाऊले भी से रोगरू मुक्त हो पारती ना औषध को खाई चलते कह जाए तो औषध बंद कर अरे केत वर्ष औषध खाई 5 वर्ष बंद कर दे औषध खाई कौन लाभ तू 5 वर्ष खाऊ भल हो सी आम कथा मानवानी से औषध खाई चलो कहीं से सुस्थ हाँ चाहूँगी कहीं से सुस्थ हाँ चाहूँगी कारण सुस्थ हवा ही तार स्वाभाविक अवस्था रोगी हवा तार स्वाभाविक अवस्था नुहे तेणु जीवात्मा स्वाभाविक भाव में जहा ताहा हवा पाई से सबु बेले ज्ञात सारे हो बा अज्ञात सारे हो से सबु बेले से चेष्टा करुथाए जो मैंने सचेतन भाव में चेष्टा करती आम कहू सी होती योगी किंतु जो मैंने अचेतन भाव में रही था से जीवात्मा सबु बेले चेष्टा करुए जमी तार स्वाभाविक अवस्था को जावाई तो आम योगी न कहले से माने युक्त हवा मार्ग रे चली जो मानक भितरे संपूर्ण भाव रे आसी सारी आत्मभाव परमात्मिक भाव ब्रह्म भाव से माने कहार साधना को लेकिरी कौन सी थट्टा परिहास करती नहीं तेणु आमे समस्ते जन्मरू मुक्त किंतु आमर ए स्वाभाविक अवस्था को आमे जेतु अनुभव करि पारुना हूँ सेतिपाई आमको शास्त्र जते कहले मध्य आमे ताको विश्वास करि पारुना हूँ ग्रहण करि पारुना हूँ किंतु ग्रहण न कले मध्य आमे सेई स्वभाव जो आमर मुक्त स्वभाव आड़को आमे अचेतन हो बा सचेतन हो गति करि चलु था हमर चेष्टा निरंतर चली थाए तेणु ये सब जो सिद्धांत रु कौन आम जानू जे आम जन्म हेचु कहीं आम जन्म हेचु बंधन रे पड़िया पई ना आम जन्म हेचु समस्त बंधन मुक्त हवा पाई देख आर्य संस्कृतिर मूल तत्व कथा मुझे कहूँ आम सनातन संस्कृतिर मूल भित्ति कर्म सिद्धांत कथा मुझे जे आमे जन्म हेचु कहीं ना बंधन रे पड़िया पे जन्म हेचु ना बंधन रे पड़िथिलु से बंधन मुक्त हवा पे आमे पुण्य उठे जन्म हेचु कोटा होची स्वाभाविक बंधन रो छेदन पाई समस्त जीवात्मा सचेतन हो बा अचेतन हो चेष्टा कर बंधन स्वाभाविक नुहे देख पानी कथा जल जल को जलटा ठंडा ना गरम जिते जल पृथ्वी को आसे वर्षा जल जो आसे पृथ्वी को स्वाभाविक ठंडा ना गरम ठंडा किंतु ताकू जदि आमे संग्रह करिक गोटे पात्र रे आमे ताकू नियारे बसई दो से ठंडा जलटा गरम हो गला
जे गरम हो गला जलटा गरम हो गला तेणु ये गरम हवाटा ये जो गरमटा तार स्वाभाविक अवस्था ना ठंडाटा तो स्वाभाविक से प्रथम कौन हो आसला ठंडा हो आसला किंतु से गरम हो गला कहीं ना आमे सेटाको निहारे बसई किंतु ताकू जदि आमे निहारू काढ़िकरी ताकू से थोईदबा आमे ताले कोन हुआ धीरे धीरे से गरमटा कमी कमी पुणी से ठंडा हो जिवो अर्थात से तार स्वभाव को फेरी जीव ठीक सेमती कि जो जीवात्मा स्वाभाविक अवस्था को निश्चय फेरी जीव से स्वाभाविक अवस्था होची कोन ना आनंद पूर्णता अमरत्व प्रशांति एटा होची प्रत्येक जीवात्मार स्वाभाविक अवस्था तेणु से अस्वाभाविक हो जाइए अस्वाभाविक हो जाइए से कहीं कारण सी कार्य और कारण भितर छंदी किंबा ये पुरुषकार जाल भितर बंदी हो जाइए से कार्य और कारण भितर छंदी हवा द्वारा भाग्य को सर्वोत्तम मन करी भाग्यवादी हो जाइए तेणु सचेतन भाव निजर बंधन मुक्ति पर चेष्टा न करी खाली भाग्य उपर निर्भर कर से जन्म पर जन्म ताको आसवाक पड़ुची एवं पुरुषकार भितर से केवल रही पुरुषकार ऊपर थिबा जो शक्ति ता सहित से युक्त न हेबारु से शक्ति पाखरे निजको से समर्पण न करिबा जोगु सरेंडर न हवा जोगु से पुरुषकार लिमिटेशन भीतर रही गला जति पारिला सेति से कला पुणिया उतर आसला तेणु एथु कोन आमे गणिला आर्य सिद्धांत कौन कहे सनातन धर्म कौन कहे वेद कौन कहे वेदांत हमको कौन सिखाए वेदांत हमको सिखाए जे हे मनीष भाग्य को अस्वीकार कर नहीं किंतु भाग्य सर्वस्व हो नहीं पुरुषकार को तुम्हें अस्वीकार कर नहीं अवहेला कर नहीं किंतु तुम्हें केवल पुरुषकार भीतर बंदी हुई रह नहीं तुम्हें भाग्य को अतिक्रम कर पुरुषकार को तुम्हें समर्पण कर दिया तेबे जो पराशक्ति अच्छी भगवत शक्ति अच्छी सी तुमको तुमर स्वभाव अवस्था को बंधन मुक्त करदेव ये हूँ आर्य सिद्धांत तेणु आम जो मनुष्य जो जीवात्मा जो स्वाभाविक आम देखुचे जे कहार मृत्यु अधीर हो जाऊँगी कहार जन्म आम हसुचे लाभ आसिले आम खुशी हो जाऊे क्षति हेले आम दुखित हो जाऊे ये सब हूँ अस्वाभाविक अवस्था ये सब भीतर दे जीवात्मा धीरे धीरे तार स्वाभाविक अवस्था को जाऊँगी सच्चिदानंद आड़ को जाऊँगी केवल मनुष्य भीतर एटा जाऊँगी ता नुहे पशु पक्षी भीतर भी हूँ किंतु ये जो पंचमहाभूत अग्नि वायु जल क्षित आप तेज मरुतभ्यम एमान के भीतर ये कौन सी प्रकार चेष्टा हवा में देखुने कोटि कोटि वर्ष गले चली गले सुधा ये क्षित आप तेज मरुत ये पंचमहाभूत तांकर गुण धर्म रु विच्युत हेई नाहंती किंतु मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग एमाने सृष्टि आरंभ जन्म पर जन्म अतिक्रम करी उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर उच्चतर शरीर ग्रहण करी से स्वाभाविक अवस्था आड़क जाऊँ तेणु मनुष्य जीवन सर्वोत्तम ए मनुष्य जन्म रे ये तत्व को बुझी हब एवं
এই বন্ধন মুক্ত ହେଇଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ପଶିଛ ସେମାନେ ସଚେତନ ଭାବରେ এই বন্ধন মুক্তি ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖ, ତୁମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖ। ଆଉ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସହଜ ଉପାୟ ଯେ ତମେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହ। ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିଲେ ତୁମେ ବି ଏଇ ଜୀବନରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ଫେରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ମୁଁ ସ୍ୱଭାବରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ତୁମେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ତୁମର ଗତି ଶିଥିଳ ହେଇଯାଉଛି, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ତୁମେ କକ୍ଷଚିତ ହେଇଯାଉଛ, ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି।